की it is impossible to measure accurately. This is Heisenberg principle. That means if we measure any object with the help of some instrument, then it will not be exact value. It will be slightly different than exact value. The difference between exact value or actual value of measurement and measured value of measurement is defined as error. So error is difference between measured value and accurate value. Now type of errors, there are primarily these four type of errors: systematic error, random error, absolute or gross error, and relative or percentage error. This systematic error, those errors whose exact cause is known to us and there are methods to reduce its value, we call them systematic errors. Clear? They are again divided into four parts. Error due to instrument. We know that to measure we need an instrument. In that instrument itself there are some errors. Those errors are primarily two types: error due to least count and error due to constant error. First one is error due to least count. What is least count? Least count of any instrument is that minimum value which we can measure accurately with the help of that instrument. Minimum value which we can measure accurately with the help of that instrument. For example, in meter scale its value is 0.1 centimeter. In case of vernier calipers, it is 0.01 centimeter. Clear? In case of stopwatch, it may be 1/100 seconds. That is minimum value which we can measure accurately. Now, if we have got a value which is in between two marks, two consecutive marks, 6.6 and 6.7 suppose centimeters, then it is impossible. Some of the observers will take it as 6.7 and some of them will take it as 6.7. 6.6 and 6.7, ठीक है, आधे इसको लेंगे आधे उसको, पर दोनों करेक्ट नहीं है. Both of these readings have error in it. This error is called error due to least count. Its value is numerically equal to least count of that instrument itself. जो उसका least count है उसके बराबर ही होती है. तो सीधी बात है, इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए जिनका लीस्ट काउंट स्मॉल हो. इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मीटर स्केल की जगह पर वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करें या स्क्रू गेज का. ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा वो बात भी होना चाहिए कि आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जिसको व्यवहारिकता बोलते हैं अपन. ठीक है, कॉमन सेंस. ठीक है, कि आप इसको कहाँ यूज़ करने जा रहे हैं. सपोज आपको लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करना है तो कोई पागल ही होगा जो वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करेगा. सर्टेनली इन दैट केस वी यूज़ लॉन्ग स्केल्स, लॉन्ग रोलर्स टू मेजर दैट लेंथ. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑल्दो दिस error due to least count can be minimized by using instruments whose least count is as small as possible. Second one is constant error. क्या बताया था मैंने कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन प्रोसेस से गुजरते हैं. कैलिब्रेशन प्रोसेस में उनके ऊपर मार्किंग की जाती है. दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हेल्प से करते हैं. वो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स एक वेइंग एक ऑफिस है पेरिस में, उस ऑफिस में रखे हुए हैं लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए. तो जितनी कंपनीज़ हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल्स, ठीक है, यदि वो मेकिंग जैसे स्टॉप वॉच बना रही है, वॉच बना रही है, ठीक है, तो वो उनके साथ उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है उनसे मार्क लेकर के आते हैं. जैसे 1 मीटर मैंने बताया, वहाँ प्लेटिनम का एक वो रखा हुआ है, पीस रखा हुआ है. उस प्लेटिनम पीस की दोनों एंड जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस एग्जैक्टली 1 मीटर है. पर कितने टेम्परेचर पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर. कितने प्रेशर पर? 1 ATM पर. अब उनने उसको लेके आ गए मार्किंग को एक दूसरे पीस पे लगा करके. ठीक, और इंडिया में आकर के उन्होंने दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठ करके उसको सेट किया और दूसरे मास्टर पीस से दूसरे और पीस बनाने में. लेकिन उनमें क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा? मेंटेन द टेम्परेचर, मेंटेन द प्रेशर. ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है और मार्किंग भी प्रॉपर करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो आजकल तो लेज़र गन का यूज़ होता है जो बहुत ही थिन होती है और इसलिए बड़ी एक्यूरेट होती है. बट स्टिल दैट इज़ इम्पॉसिबल दैट द मार्किंग आर एग्जैक्टली ट्रू. एंड दैट्स वाई यदि आप अलग अलग स्केल लेते हो तो हर स्केल में आपको 0 से 15 सेंटीमीटर सेम लेंथ नहीं मिलेगी. आप आज जितने स्केल आपके घर में सबको मेज़र करके देख सकते हो. ठीक है, एंड दैट्स वाई दिस एरर इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर. एक और चीज़ होती है, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें कई बार स्क्रू वाले होते हैं, जैसे स्क्रू गेज में है. ठीक है, या कई जगह पर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो वियर एंड टीयर के कारण धीरे धीरे करते उसमें एरर बढ़ती चली जाती है. ऑल दीज एरर्स आर टेकन इनटू अकाउंट इन कांस्टेंट एरर. तो रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए? वी मस्ट यूज स्टैंडर्ड स्केल. नंबर 1 स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट. नंबर 2
टाइम टू टाइम वी मस्ट चेक एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यदि वो इनएक्यूरेट हो गया चेंज कर दो उसको, ठीक है। तो ये 2 एरर हो गई। देन एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर, आप खुद जो है वो ऑब्जर्वर हैं। जब भी आप बोलते हो कि आज 11:29 हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने ऑब्जर्व किया टाइम को, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर कितने सही तरीके से एक्यूरेटली उसको मेज़र कर रहा है, ठीक है, कितनी करेक्ट मेथड उसे पता है उसकी मेज़र करने की, इस पे डिपेंड करता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। इफ़ ही डजंट नो द मेथड करेक्टली तो कुछ भी लिखते रहेगा वो, ठीक है। यदि उसको पता भी है और उसने ध्यान से नहीं, मैंने बताया जैसे हर रीडिंग को लेने का तरीका होता है। इफ़ यू वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देन यू मस्ट कीप योर आई एग्जैक्टली नॉर्मल अबव इट, ठीक है। तब जो रीडिंग आपको स्केल पर दिख रही है उसको मार्क करना है, ठीक है। और ये हम नहीं करते हैं। सच एरर्स आर डिफाइंड एज एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर। रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, एक ही रीडिंग को मल्टीपल टाइम्स अलग अलग ऑब्जर्वर को लेना चाहिए। 4-5 ऑब्जर्वर की एक सेट होना चाहिए, वो सब ऑब्जर्व करेंगे, अपनी अपनी रीडिंग लिखेंगे और फिर उन सारी रीडिंग्स का एवरेज लेंगे आप। दैट एवरेज विल रिड्यूस अमाउंट ऑफ एरर। ये हो गया एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर। देन एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, मैंने बताया कि देयर इज कंटिन्यूस चेंज इन टेम्परेचर, इन एयर फ्लो, इन प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, in humidity of surrounding atmosphere, they all continuously change during the day. So if that instrument is affected by it, then certainly you will read inaccurately. For example, if you take a scale which is made of steel and you are using it to find length in winter and summer, the lengths will be different. If you take a pendulum clock, then it will slow down in summer and will become fast in winter because change in length of the bob, change in length of the pendulum. So in case of pressure measuring instrument barometer, with increase in humidity there is change in pressure, although there is no change in surrounding atmosphere, but it seems that reading, the length of height of mercury column is changing. These all errors are taken into account as error due to external cause. रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, पहले से आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होता है तो कितनी लेंथ चेंज होगी। जैसे साउंड की स्पीड की बात करें, 332 मीटर पर सेकेंड, this is speed of sound at 4 degree centigrade temperature at 1 atm 1 atmosphere pressure। लेकिन यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो इसकी स्पीड जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होती जाती है पर डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड। कितनी बढ़ती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो यदि आपको पता है कि अभी टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 10 × 10 कर दोगे, इतनी और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यदि पहले से आपको पता हो कि कितनी स्पीड में या कितना उसका अफेक्ट होने वाला है उस एक्सटर्नल कॉज का, तो यू कैन कैलकुलेट एंड अकॉर्डिंग टू साइन, यदि उसको बढ़ाया है तो कम कर देंगे, कम हो गया तो बढ़ा देंगे, ठीक है। दिस इज द मेथड टू रिड्यूस इट्स वैल्यू। 4th वन इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। क्या बताया था मैंने, देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस एनर्जी इटसेल्फ टू मेजर, बट इफ देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, जो होना ही होना है, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड दैट्स वाई द अमाउंट ऑफ रीडिंग विच यू आर टेकिंग विल हैव एरर इन इट। वी कॉल इट एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। कैलोरीमीटर हुआ, वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको खुद को भी एनर्जी चाहिए रहती है या वो खुद एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है, इन दोज इंस्ट्रूमेंट देयर इज़ एरर इन कैलकुलेशंस। वी कॉल इट एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें मैंने समझा दिया हूँ। ये 3 चीज़ें बहुत आसान हैं, वो कल समझेंगे अपन, ठीक है। इसके सब